جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتی ہے، اس زمانے کو یاد کرو، اس زمانے میں عورتیں نفلی روزہ کا بھی کتنا اہتمام کرتی تھی۔ آئیے ایک واقعہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے مجھے اس کی سچائی اور حقیقت میں ان کے بارے میں تلاشی نہیں کیا ہوں، لیکن اس طرح واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت جب نماز پڑھتی تھی اور روزہ رکھتی تھی، جب نماز پڑھتی تھی ان کا شوہر اتنا مارتا تھا، اتنا پیٹتا تھا، وہ عورت شکایت کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ اور جب نفلی روزہ رکھتی تھی، نفلی روزہ رکھتی تھی تو ان کا شوہر تڑوا دیتا تھا۔ نماز زیادہ پڑھنے پر مار اور روزہ رکھنے پر توبہ دیتا تھا ان کا شوہر۔ ہم اور آپ یہ سوچتے کہ ان کا شوہر بڑا ظالم ہوگا، نہیں، پورا واقعہ سنیے۔ شکایت اللہ کے رسول سے کی کہ اللہ کے رسول، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر مجھے مارتا ہے، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا شوہر روزہ توڑوا دیتا ہے۔ کہ تمہارا شوہر کون ہے؟ کہ یہ میرا شوہر ہے، بغل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے شوہر سے اللہ کے رسول نے پوچھا، تمہاری عورت اگر تمہاری بیوی نماز پڑھتی ہے، نماز ادا کرتی ہے تو کیوں مارتے ہو؟ تمہاری بیوی اگر روزہ رکھتی ہے تو کیوں توڑواتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اللہ کے رسول، میری بیوی نماز میں اتنی تاخیر کر دیتی ہے، لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہے، نماز کو اتنی لمبی کرتی ہے، نماز اتنی تاخیر سے پڑھتی ہے کہ رات کی آدھی سے گزر جاتے ہیں، رات کی تہائی حصہ گزر جاتا ہے۔ میں جوان ہوں، برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میں اس کو اشارتاً کنایتاً واقعہ بتا رہا ہوں، کھل کر آپ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ جائیے گا۔ وہ کہتا ہے، اللہ کے رسول، میں جوان ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنی خواہش کو زیادہ دیر تک روک نہیں پاتا ہوں، برداشت نہیں کر پاتا ہوں۔ اللہ کے رسول، میں ابھی جوان ہوں اور میری بیوی جب نماز پڑھتی ہے تو لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتی ہے، میری بیوی جب نماز پڑھتی ہے تو 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت نفلی نماز پڑھتی ہے، 4 کی جگہ 8 رکعت نماز پڑھتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جلدی نماز پڑھ کے آ جاؤ، وہ اور اس کو طول کرتی ہے اور لمبی کر دیتی ہے، اس لیے میں مارتا ہوں۔ اچھا ایسی بات؟ کا محترمہ، نماز میں لمبی نہ کیا کرو، تمہارے شوہر کو تمہاری اس عمر میں ضرورت ہے، تمہاری خواہش، تمہارے شوہر کی خواہش، اس وقت دونوں کو ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کی حامی رہے، ایک دوسرے کے سپورٹ میں رہے، ایک دوسرے کے حق میں رہے۔ اس وقت تمہیں اس کی ضرورت ہے اور اس کو تمہاری ضرورت ہے، اس لیے تمہارا شوہر اگر تمہیں جلدی اپنے بستر پر بلاتا ہے تو تم آ جایا کرو، اور نماز میں لمبی نہ کیا کرو، نماز میں 2 صورتیں پڑھا نہ کرو، 1 صورت سے بھی تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اچھا بتاؤ، روزہ کیوں توڑواتے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول، میں جب دن میں اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہوں تو میری بیوی کا جواب وہی آتا ہے کہ آج میں نفلی روزے سے ہوں، 1 دن میں برداشت کرتا ہوں، 2 دن کرتا ہوں، 3 دن کرتا ہوں، 4تھے دن غصہ آ جاتا ہے تو میں مار بھی دیتا ہوں اور روزہ توڑوا بھی دیتا ہوں۔ یہ کثرت سے نفلی روزہ کا اہتمام کرتی ہے، اللہ کے رسول، مجھ سے برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نفلی روزہ رکھ رہے ہو لیکن اتنا نہ رکھا کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، لا تصوم المرأة وبالها شاہد الا باذنہ، کہ کوئی عورت اس حال میں کہ جب ان کا شوہر ان کے گھر میں موجود ہو، ان کے پاس موجود ہو تو وہ نفلی روزہ نہ رکھے، الا باذنہ، ہاں شوہر کی اگر پرمیشن مل جائے، ہاں شوہر کی اگر اجازت مل جائے۔ اسلام ہی ہے جو ہر راستہ نکلتا ہے۔
औरत को ये मना कर दिया गया, ला तसूमुल मरअ, औरत को मना कर दिया गया कि रोजा ना रखो इस हाल में वह बालुहा शाहिदुन, कि तुम्हारा शौहर घर में मौजूद है और तुम नफली रोजा रखो। हाँ इल्ला बिइज़्निही, अगर शौहर इजाजत दे दे तो रख सकते हो, लेकिन परमिशन लेना पड़ेगी आपको। इस्लाम में शौहरों की कद्र देखिए, बीवियों की कद्र देखिए। कोई अगर इंसान मर्द सिर्फ इबादत करता है, अपने बीवियों के पास नहीं जाता है, तो बीवियों का हक भी बतलाया, क्या शौहरों वइन्न लिअइनिका अलैका हक्कन वइन्न लिज़ौजिका अलैका हक्का, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। और कोई औरत अगर सिर्फ नमाज पढ़ती रहे, इबादत करती रहे, अपने शौहर को खुश ना करे, अल्लाह की कसम शौहर अगर उससे नाराज हो जाए इन सब मामले में तो हत्ता लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, फरिश्ते उस वक्त तक लानत करते रहते जब तक सुबह ना हो जाए, या उस वक्त तक लानत भेजते रहते जब तक वो उससे राजी ना हो जाए। तो मेरे भाइयों ये सब कंडीशन पर तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ नफली रोजे का एहतिमाम के बारे में इतना बताया गया, लेकिन बहुत सारी औरतें भी हैं कि फर्ज रोजे भी नहीं रखते हैं। महीने में जो भी दिन है, माहवारी अय्याम मखसूस को छोड़कर 25 दिन 24 दिन जो भी बचता है उसमें रखे, बाद में उसको पूरा करें कज़ा करके 6-7 रोज जो बचता है। लेकिन उस जमाने में एहतिमाम नफली रोजे का भी किया करते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, 2 चीज हो गई, अब आइए तीसरी चीज, वातात ज़ौजहा, जो औरत अपने शौहर की इताअत करे। शौहर की इताअत से क्या मतलब है? शौहर जो भी कहे वो करें, कि जाओ खेत में काम करके ले आओ, पैसा कमा के लेके आओ, मजदूरी करके ले आओ, हम बैठ बैठ के खाएंगे, आराम से मौज करेंगे, ऐसी बात नहीं। इताअत से मुराद शरीयत इस्लामिया में जो चीजें बतलाई गई जायज तरीके वो करना पड़ेगी। अगर कहें कि पैसा कमा के लेके आओ, नौकरी करो, ये करो, शरीयत के मुताबिक जो जायज है। इताअत से मतलब ये है, शौहर अगर आपको एक दिन में 2 कपड़ा दिया और कह दिया वो मेरी बीवी 2-4 रोज के लिए और नहीं मिलेगा, 2-4 महीने के बाद फिर मिलेगा, अभी जेब खाली है, वो औरत बर्दाश्त करेंगी, वो औरत सब्र करेगी। लेकिन अगर महीना भर खिलाते जाओ, महीना में 30 दिन, मान के चलिए 30 दिन, 29वें दिन आप अगर खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे, कपड़ा ला कर देंगे, खाना ला कर देंगे, खिलाते रहेंगे, लेकिन एक दिन अगर कमियां आ जाए, वही औरत अगर नाशुक्री है, वही औरत अगर आपकी इताअत नहीं करती है, फरमा बरदारी नहीं करती है, शौहर की इताअत नहीं करती है, तो चौराहे में निकलेंगे, पड़ोसियों के घर में निकलेंगे और औरत से कहेंगे मेरा शौहर, इनके पास न खाने का सुख है, न पहनने का सुख है, आज कपड़ा है तो कल नहीं है, आज सुबह का खाना है तो शाम को नहीं है, एक दिन ना मिलने पर ये पूरे 29वें दिन का एहसान भूल जाएंगे। ऐसी औरत को नाशुक्री बताया गया है। अल्लाह के रसूल सफर मेराज पर गए, आपको जन्नत दिखाई गई, जहन्नम दिखाई गई, आपने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को जलते हुए देखा। एक मर्तबा आप ईदगाह तशरीफ ले गए, रास्ते में देखा कि कुछ औरतों की टोलियां हैं, कुछ औरतों की जमातें। आपने फरमाया मुखातब करते हुए, या माशरन निसाई, आए औरतों की जमातों, आए औरतों की जमातों, तसद्दक ना सदका किया करो, इसलिए कि फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर मिन अहलिन नार, मैंने तुम सबको जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है, सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। इस जमाने में अगर किसी औरत को कह दो कि औरत के बारे में ये है वो है, मर्दों को मिलेगी जन्नत, हम लोगों को थोड़ी ना मिलेगी, लेकिन उस जमाने की औरतों को देखिए, फौरन सवाल किया, कुल्ला व बिमा या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल ऐसे कौन लोग होंगे, ऐसी कौन सी औरतें होंगी, बदनसीब औरतें कौन सी है? आपने फरमाया तुक्सिरनल लान व तखफुरनल अशीर, एक किस्म की औरत वो होंगे
جو لان تان زیادہ کیا کرتی ہے, منہ چلایا کرتی, جب دیکھو بات چیت کرتی ہے. اللہ کے رسول نے عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا گیا ہے, لیکن جب چاہو لڑو, جب چاہو آواز نکالو, جب چاہو گالی دو, جب چاہو فضول بات کرو, جب چاہو زبان چلاؤ, جب چاہو غیبت کرو, جب چاہو لان تان کیا کرو. تخسرن اللعن, ان میں سے ایک قسم کی عورت وہ ہے جو سب سے زیادہ لان تان کیا کرتی ہے, اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. یہ چیز ٹچ کھایا موضوع سے کہ جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. شوہر کی ناشکری سے مراد یہ ہے کہ میرے بھائیوں, اس عورت کو جتنا کھلاؤ, جتنا پلاؤ, وہ کبھی آپ کا نام نہیں لیں گے. جتنا دن پلاؤ گے, جتنا دن کھلاؤ گے, وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. جیسے کمیاں پڑ جائیں گی ان کا ارادہ بدلتا جائے گا. اگر آپ کو نہیں معلوم تو کسی سے پوچھ لیجئے گا جن کی شادی ہوئی ہے. اب پھر ایسا نہ ہو کہ کل ہم ہی سے پوچھئے, پھر ایسا نہ ہو کہ کل ہم ہی سے پوچھئے. ایک چینل والے لکھ دیا, میری تقریر میں کیا لکھتے جانتے ہیں کہ بی بی سے کیسے رہنا ہے, بی بی خوش نہ ہو تو کیا کریں. یہ چینل والوں نے لکھ دیا. ہماری ابھی ہوئی نہیں, ہمارے اوپر یہ بڑا بڑا الزام دے رہے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں, اطاعت سے مطلب ہے شوہر اگر تمہیں نماز کا حکم دے تو نماز پڑھنا پڑے گی. شوہر اگر کہہ رہا ہو میری بیوی میں گھر میں رہتا ہوں, کبھی نہیں رہتا ہوں, میں دن میں کام میں چلا جاتا ہوں, رات میں آتا ہوں, میں تمہیں دیکھ نہیں پاتا ہوں, تم امانت میں خیانت نہ کرنا, میری پرمیشن کے بغیر مسجد میں بھی نہیں جانا. اتنا ہے اسلام میں, میری پرمیشن کے بغیر تم بازار نہ جانا. لیکن وہی شوہر جیسے گھر سے نکل گیا, ان کی بے پردگی نظر آ گئی. کیا چیز ہے, اب کیا کیجیے, ٹائم ہو گیا. اچھا پھر رتنی میں آئیں گے تو پڑھیں گے, اب قریب ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن کچھ عورتوں کی عادت یہ بھی, حرکت یہ بھی ہے, شوہر جیسے نکلا ان کی بے پردگی نظر آ گئے. ایک مرتبہ کسی نے اپنی بیوی کا انٹرویو لیا, امتحان لیا. کیسے؟ تھوڑی دور گیا, بیوی کو جس لباس میں دیکھ کر گیا کہ بیوی تم اس لباس میں رہنا, پردگی کے ساتھ رہنا, با پردہ رہنا. تھوڑی دور گیا, وہ عورت پھر اپنے ہی شکل میں, اپنے ہی حلیہ میں آ گئے. جب گھر لوٹا, دروازہ کھولا, بیوی کو برہنہ حالت میں پایا. جو ان کا معمول تھا, شوہر نکلا, جو ان کا رویہ تھا وہ اختیار کر لیا, پکڑا گیا چوری. تو میرے پیارے ساتھیوں, اطاعت کا مطلب ہی ہے شوہر اگر آپ کو تو خود سے کرنا ہی ہے, لیکن شوہر اگر کہے کہ نماز ادا کرو, روزہ رکھو, اللہ کو یاد کیا کرو, کسی سے جھگڑا نہ کیا کرو, میری ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو کیونکہ وہ بھی تمہاری ماں ہے. اور یہ منتر بھی رامائن, یہ منتر بھی وواہ سلوک میں, رامائن میں نہیں ہے لیکن وواہ سلوک میں ہے, ان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ساس کی خدمت ویسے ہی کرو جیسے اپنی ماں کی کرتی ہو. شوہر اگر آپ کو یہ کہے تو کرو, لیکن شوہر تو دن بھر آفس میں رہتا ہے. آپ نے ساس کی ہزاروں غلطیاں نکال کر شوہر کو بتلا دیے, شوہر بھی اپنی ماں پر ناراض ہو گئے, اس لیے کہ وہ دن میں باہر رہتا ہے, ان کو پتہ نہیں چلتا ہے. بیویوں کی ساری باتیں سن کر ماں سے لڑائی شروع, باپ سے لڑائی شروع, ساری چیز عورت کا ہاتھ ہے. لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے صرف عورتوں کے خلاف بولتے جا رہے, لگتا ہم لوگوں کا کچھ حق ہی نہیں. حق ہے, مردوں کو بھی اسلام میں کہا, قرآن میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ اے مردوں تم اپنے عورت کے ساتھ بود و باش طریقے سے پیش آؤ. حدیث میں, ابو داؤد کی حدیث ہے کہ تم جس معیار کے کھانا کھا رہے ہو, جتنے روپیہ والا کھانا کھا رہے ہو اتنے روپیہ والا ان کو بھی کھلاؤ. یعنی تم جو کھا رہے ہو اس کو بھی کھلاؤ, جو پہن رہے ہو اس کو وہی پہناؤ. اب پھر ایسا نہیں جو آپ کا کرتا ہے, سٹ ہے, پنجابی ہے, وہ جا کے پہنا دینا, ایسا نہیں. مطلب آپ جتنے روپیہ والا خرید کے پہن رہے ہو اتنا اس کو بھی پہنائیے.
आप ऐसा नहीं बाजार में मौज कर रहे, मस्ती कर रहे हैं, इतना रुपया वाला आपका चल रहा है, फाइव स्टार होटल में बैठ के आप 1000 रुपये वाला खाना खा रहे हैं। यहाँ बीवी का पता चला घर में नमक नहीं, हल्दी नहीं, और कुछ अगर कमी आ जाए तो तार तार के मारो। कुछ लोग हदीस का मफहूम भी गलत समझते हैं, जो खाओ वो खिलाओ, जो पहनो वो पहनो, आज के बाद से पंजाबी पहना देना, कुर्ता पहना देना। लालू जी से एक मर्तबा सवाल किया, लालू जी को जानते हैं ना, उनसे सवाल किया कि आप अपनी बीवी को क्या खिलाते, पत्नी को क्या खिलाते। लालू जी ने कहा मेरी पत्नी का नाम राउड़ी है, मैं क्या खिलाऊं तो खुद राउड़ी है। तो आप भी ऐसा कीजिएगा, बीवी का नाम हलवा रख दीजिए, वो तो खुद हलवा क्या उनको खिलाएंगे, वैसा नाम रख दीजिएगा, आपकी बारी कट जाएगी। अब ये सोचेंगे बोल भी रहा तो उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के हक में बोल रहा है, हम लोग के खिलाफ बोल रहा है। तो मेरे प्यारे साथ, जिस किस्म के आप जितने रुपये वाला खरीद रहे आप उनको भी खिलाइए। जायज़ है, इस्लाम ने यह भी कहा कि आप अपने हाथ से बीवी को उठाकर अगर खिला रहे, सवाब है, बरकत है। लेकिन इस तरह अगर खिला दे, कोई अगर देख ले तो पता क्या चलेगा। सुबह आपके बारे में अखबारात आ जाएंगे, फला घर में एक भड़वा निकला है, सुबह ही ऐलान हो जाएगा। आप घर में बैठे, सुबह ऐलान हो जाएगा। खिलाइए, कभी मोहब्बत का ही तकाजा है मेरे भाइयों। यहाँ बीवी का रिश्ता हम और आप ये सोच रहे हैं कि उसको मामूली समझ रहे, नहीं, जिंदगी वाला रिश्ता अगर कोई है तो मियाँ बीवी है। आप देख लीजिए दुनिया में, बेटा बड़ा हुआ बिस्तर अलग करने का हो, बेटी बड़ी हुई माँ से बिस्तर अलग करने का हो, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं। यहाँ तक कि अगर आप भी नेक है, आपकी बीवी भी नेक है, तो उस दुनिया में भी जन्नत में वही बीवी मिलेगी। आप ये सोच रहे हैं कि उस दुनिया में हूर अगर मिलेगी जन्नतियों को, वो तो बहुत खूबसूरत होगी, काली कुलीटी जायन चुड़ैल को लेके क्या करेंगे। अल्लाह उसको इतना और खूबसूरत बना देंगे कि ये सब हूरों को फेल कर देंगे। इसलिए मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत लंबा रिश्ता होता है, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, इसी को ना कहा गया है। इनके बारे में एक वाक़या अगर याद रहे तो बताऊँगा। गौतम बुद्ध के बारे में उन्होंने लिखा है 32 आगम सूत्र में, याद रहे तो बताऊँगा। तो ये बहुत बड़ा अहम रिश्ता होता है। तो आप इताअत कीजिए, शौहरों की इताअत, मेरी बहनों शौहरों की इताअत कीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा, अच्छा एक चीज़ मानिए, सजदा क्या चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है कि नहीं। सजदा कर लिया अल्लाह के अलावा किसी गैर को, इस्लाम से निकल गया, कुफ्र कर लिया। सजदा अगर अल्लाह के अलावा किसी को जायज़ होता तो औरत को अल्लाह के रसूल हुक्म देती कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं, अगर बाप का कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए ना, बाप की तरफ से कुछ मिल जाए तो शौहर को अपने मुट्ठी में कर लेंगे, जब चाहेंगे नचवाएंगे। मिला वाला लगता है, हमारे वहाँ खगड़ा का मेला लगता है, वहीं पे नचवाएंगे। बाप की अगर प्रॉपर्टी मिल जाए, आज तो बाप का ये, आज तो भाई का है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आएंगे कि शौहर क्या चीज़ होती है। अल्लाह की कसम मैं बोल रहा हूँ, कितने ऐसे लोगों को देखा कि औरतें अगर बाप की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी, कुछ जायदाद मिल जाती है उनको, तो अपने शौहर को नचवाते हैं। जब चाह खड़े, जब चाह बैठ जाओ, जब चाह खड़े हो जाओ। इतना याद रखिएगा, ये शौहर की नाशुक्री है। अब शौहर को ठुकरा रहे हैं। एक मर्तबा लड़का लड़की का प्यार हो गया, लड़की ने कह दिया कि मेरे अब्बू आपसे शादी देने के लिए तैयार नहीं है, आपकी औकात देखना चाहता है कि आपकी औकात कितनी है कि मेरी बेटी से प्यार करें, उसको मेरे घर बुलाओ। वो लड़का भी बड़ा होशियार था, उन्होंने फ़ोन में कह दिया कि तुम्हारे अब्बू को कह देना कि वो गरीब के घर में नहीं जाता है। नहीं समझे, औकात देखना चाहता था, मेरी बेटी से प्यार करेगा, मेरे घर आओ, पता चलता है तुम्हारी हैसियत क्या है। उन्होंने फ़ोन में कह दिया कि मैं गरीब के घर नहीं जाता, तो होता ही है। तो ऐसा आप सीख लीजिए, आप फिर ऐसा नहीं कि प्यार करने बैठिए। मैं आपको एक चीज़ बतला रहा हूँ, तो मेरे भाइयों ये ऐसा होता है, ये चीज़ पाई जाती है। आप बोले मैं बनावटी बता रहा हूँ, बाकायदा किताब है मेरे पास इन सब चीज़ों के बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 साल से मेरी मेहनत और कुछ ज़्यादा हो रही है, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आगे और बढ़ सकूं। कुछ हासिदीन है, मैं उनको नज़रअंदाज करता हूं, लेकिन अभी भी हमारे मुहिब्बिन बहुत हैं, इसलिए आप खुसूसी तौर पर मेरे लिए दुआ कीजिए। तो ये है, औरत अपने शौहर की नाशुक्री से बचे। अगर हदीस में ये भी है कि अगर माल है शौहर का, औरत को हिफाजत की जिम्मेदारी है कि वो औरत अपने शौहर के माल की हिफाजत करें। लेकिन अगर आप ये जिम्मेदारी दे के जाएंगे ना कुछ दिनों के लिए,
अगर इनके हाथ में सारी जायदाद आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए, कभी आपको तलाक दे के खुला लेके निकल जाएंगी। लेकिन इसलिए इतना उसके हाथ में इतना भी मत दीजिए। एक औरत ने अपने शौहर को इतना गुर्बत में डाला, इतना गरीब कर दिया। उन्होंने अपने किसी औरत से कहा, क्या कहा जानते हैं? पड़ोसी की औरत से कहा कि मैंने अपने शौहर को एक ही महीना में लखपति बना दिया। अब उनकी पड़ोसी कहने लगी, अच्छा इसका मतलब तेरा शौहर पहले गरीब था? का गरीब नहीं, पहले वो करोड़पति था, मैं उसका पैसा चुरा चुरा कर उसको लखपति बना दिया। पहले करोड़ रुपया का वो मालिक था, अब मैं उसके पैसे को ट्रांसफर यहाँ से वहाँ से वहाँ करते करते उनको लखपति बना दिया। तो पहले समझिएगा वो क्या बताना चाहता। औरतों के मिजाज है मेरे भाइयों। उस किताब में बाकायदा ये भी लिखा हुआ है कि कुछ औरतों की शातिरा दिमाग, शातिरा चाल ये है। एक मर्तबा किसी औरत ने किसी औरत से कहा कि अच्छा ये बताओ, मर्द हमेशा ऊपर रहता है, औरत नीचे रहती है, क्या मतलब है? अल्लाह ने औरत को इतना हकीर क्यों बनाया? तो उस औरत ने क्या जवाब दिया जानते हैं? उस औरत ने कहा कि अल्लाह ने हम सबको इसलिए नीची करके पैदा किया ताकि मर्द जब बात करे तो सर झुका कर बात करे, और जब हम बात करें तो सर उठा कर बात करें। तो ये है मेरे भाइयों, वो आता ज़ौजहा, ऐसी औरत जो अपने शौहर की इताअत करती हो, शौहर की कभी नाशुक्री नहीं करती हो। मेरे प्यारे साथियों, तीसरी चीज हो गई और एक चीज बच गई। वह अहसनत फरजहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की हिफाजत से मतलब ये नहीं कि जिना करने से नहीं बचो। शर्मगाह की हिफाजत से मुराद ये भी है कि हंसी मजाक दूसरों से उतना ज्यादा ना किया करो। मजलिस में चला करो तो एहतियात से चला करो। जब रास्तों में चला करो तो बुरके के साथ चला करो। रास्ते का सफर करना है, किसी जगह का यात्रा करना है, सफर करना है तो अगर दाएं तरफ मर्द है तो बाएं तरफ चला करो। हदीस के अल्फाज है, कुल्लु ऐनिन जानिया, हर आँख जानी है, फहिया कज़ा व कज़ा, उनमें से वो औरत भी है। फमर्रत बिल मजलिस, जो मजलिस से गुजर जाए, सिर्फ गुजर जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, औरत को इतना एहतिमाम करना जरूरी है, इतना ख्याल रखना जरूरी है। शर्मगाह की हिफाजत से मतलब ये है कि मेरे प्यारे साथियों, जिना से बचे उनके अलावा और भी जो देगर बेपर्दगी की चीज है उनसे भी बचे। अल्लाह के रसूल के पास एक काली कलोटी औरत आई, सियाफाम औरत आई और कहा, अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी का दौरा आता है। मिर्गी की जो बीमारी होती है ना, उसमें होता है कि जब किसी आग को वो देख ले, पानी को देख ले, वहीं पे उनका दौरा ये शुरू हो जाता है, ये बीमारी शुरू हो जाती है। जैसे आग को देखेंगे, आग इस तरह भड़कता वो भी भड़क जाएंगे। तो इसलिए मिर्गी का दौरा उस औरत को आया। उसने अल्लाह के रसूल से आके बतलाया कि अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी का दौरा आता है, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आपने क्या फरमाया ये सुनिए, इन सबर तिलके इन शीति सबर तिलके, आए औरत सबर कर लो, अगर तुम चाहो तो सबर कर लो। सबर अगर करती हो मेरी बहनों, सुनो इस वाक़े को, अगर सबर कर ले तो तुम्हारे लिए जन्नत का ठिकाना है। अगर सबर नहीं करते हो, अगर सब्र नहीं करते हो तो मैं दुआ कर दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी। उस जमाने की औरतें कितनी नेक थी, कितनी सीरत वाली थी, जन्नत की ख्वाहिश कितनी रखती थी। उसने कहा, एक तरफ सब्र करने से जन्नत मिल रही है, दूसरी तरफ इस दुनिया की परेशानी पसंद है, लेकिन जन्नत खोना पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल कह रहे, अगर तुम सब्र कर रहे हो तो वलकिल जन्ना, तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर सब्र नहीं करते हो तो मैं दुआ कर देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं ले रहा हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, उस औरत ने कहा, अल्लाह के रसूल मैं सब्र कर लूंगी, लेकिन आप एक काम कीजिए। क्या काम?
वो मौजू से टच खाएगा। जब मुझे मिर्गी का दौरा आता है, जब ये बीमारी मुझे आती है तो मेरा सतर खुल जाता है, मेरी शर्मगाह खुल जाती है, मेरा बदन खुल जाता है, मैं बरहाना हो जाती हूँ, मैं नंगी हो जाती हूँ। जिसको देख कर लोग हार महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, मेरी शर्मगाह खुल जाती है, सतर खुल जाता है। अल्लाह के रसूल, मुझे मर जाना पसंद है लेकिन मेरा शर्मगाह खुले, मेरा सतर खुले ये पसंद नहीं है, आप मेरे लिए इतनी सी दुआ कर दीजिए। आपने कहा ठीक है, मैं दुआ कर देता हूँ। आज के बाद से तुम्हें मिर्गी का दौरा आएगा, ये बीमारी आएगी तो तुम्हारा सतर नहीं खुलेगा, तुम्हारी शर्मगाह नहीं खुलेगी। इतना एहतमाम करते थे वो लोग, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते थे, अपने सतर की हिफाजत करते थे। आइए इस्लामी चीज तो हुई। केरल के अंदर वो लड़की जिनको नंगेली के नाम से याद किया गया, नेटिव लाइफ इन त्रावणकोर के अंदर ये टैक्स लिखा गया, मूलाकरम टैक्स के नाम से जिनको जानते हैं, ब्रेस्ट टैक्स के नाम से जब ये कानून नाफिज किया गया, सतर खुल के रहना होगा, शर्मगाह खुल के रहना होगा, छाती खुल के रहना होगा। अगर कोई नहीं करता है तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। एक औरत थी, उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए पैसा देना पड़े, लेकिन मैं अपनी शर्मगाह खोलने के लिए तैयार नहीं, सतर खोलने के लिए तैयार नहीं। जब टैक्स मांगने के लिए आए तो उन्होंने क्या किया, छुरी उठाई, चाकू उठाया, अपने ही पिस्तान को काट दिया। कहा मंजूर है, इस दुनिया में रहना बेहतर नहीं, लेकिन पर्दा बेपर्दगी रहना पसंद नहीं है। जब ऐसा किया, प्रोटेस्ट किया, एहतिजाज किया, तो उस गवर्नमेंट को ये कानून वापस लेना पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, चाहे किसी भी धर्म की औरत हो, चाहे किसी भी धर्म की लड़की हो, अगर हकीकत में इज्जत की अगर वैल्यू जानती है तो वो कभी नहीं कहेंगी जिनको रहना रहे। जो ये चिल्लाते रहते हैं कि ये इस्लाम में पर्दा, ये इस्लाम में पर्दा, वो खुली रहे, साड़ की तरह रहे, उससे कोई मतलब, आप उनसे बहस मत कीजिए। इस्लाम में जो है उसको अपनाइए। मैं यही से अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, बारिला इस जलसे को कबूल अता फरमा, हमारे अंदर जो गलती हो अल्लाह इसको नज़रअंदाज करके हमारी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा, हमारे अंदर मज़ीद वो सलाहियतें पैदा कर दे, वो क़ुव्वत पैदा कर दे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे अंदर गलती है, आप इस्लाह कर दीजिए, लेकिन पीठ पीछे बुराई मत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।